a brand new episode of For the Record India. My name is Aditya Lokhande, and today I am joined by a very talented rapper straight out of Lucknow. Skand, bro, go on, introduce. Hey, what's up? So, hi guys. Firstly, thanks to you for getting me on this podcast. Talented rapper is still a thing. I don't know if I am one, but yeah, thanks for that. And I come from Lucknow. हम लखनऊ से आते हैं हमारा and पिछले 2014 से लखनऊ हिप हॉप सीन में मतलब हम जुटे हुए हैं and मतलब it's I mean, it kind of sounds very flexy to add the word OG to your name, but if I get the opportunity to, I can actually add कि भैया हैं OG यहाँ के OG तो हम हैं. So yeah. Bro, because first of all, जिन्होंने क्लासी देहाती नहीं सुना है वो सुन के बोल देंगे bro, you're a talented rapper. So there's no doubt in that. Secondly, मैं सोच रहा था कि bro, I think मेरे गली में came out in 2015. Yeah. And Yeah. You have been rapping in. Did you start in Hindi or English or कैसा सीन था? I started in English, but I started writing raps in 2013, not in 2015. Okay. मतलब I started writing in 2013. मतलब it was not because of Meri Gali Mein, but my first song that I released called Nawab, if you checked it out somewhere. Yep. So that was kind of influenced by Meri Gali Mein because it kind of like I would accept the fact that it was needed that कोई अपनी गली की बात करे तो मैंने भी अपनी गली की kind of बात करी. And not just that track, there's another song called शहर मेरा चंडीगढ़ by Crew 172, एक पंजाब का है, तो उनका गाना था शहर मेरा चंडीगढ़, which was like a मेरी गली में पंजाब. So right. It kind of वो गाने के influence वहाँ से आया होगा, but obviously rap का influence came way before, like in 2013 and 2012. Yeah. No, because like the मेरी गली में the song, it like there's a scene before it and there's a scene after it, and I'm not saying I'm not a fan of the song personally, but I really think it's an important song that way. And you have been doing this क्योंकि बाकी rappers सब उसके बाद फटे हैं ना, and you have been doing this since 2014. So like tell me about how your beginning was, what were your influences, hip hop में कैसे interest आया? तो मैं बताता हूँ तो as you know कि मतलब obviously as you know but people don't know, apart from being a rapper I'm also a copywriter. So creative writing is something that I also do and I'm quite good at too. मतलब वो भी मैं कर लेता हूँ, ऐसा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं कर रहा हूँ, but I like doing that too. So उसका इन्फ्लुएंस यार पता है एक्चुअली मेरी लाइफ में राइटिंग का इन्फ्लुएंस रैपिंग से पहले आया था and that was because of शेक्सपियर. क्या बात? मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था तो हमारे यहाँ मतलब शेक्सपियर वाज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स हु यूज्ड डिवाइसेस लाइक पन, मेटाफर, पोएट्री, इमेजरी. तो व्हाइल रीडिंग शेक्सपियर राइटिंग का इन्फ्लुएंस वहां से आया कि शिट देयर इज मोर टू राइटिंग, लाइक देयर कैन बी टू मीनिंग्स टू अ वर्ड. यू कैन टॉक अबाउट वाटर बट यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट समबडीज लाइफ व्हिच इज फ्लोइंग अवे. सो what standard was this? कौन सी स्टैंडर्ड में, if you could remember? 7th 8th. Okay. That's still pretty early, bro. 7th 8th is writing came from Shakespeare, but then things got a little bad at my place. Like we went through hell. Like something really bad happened at my house, and that happened while that point. Like जब 6th 7th में वो चल रहा था दौर, but मुझे पता नहीं था वो इतना वर्सन होगा. So it kind of worsened till 8th and all. तो उसमें जब मैंने Eminem को सुना and I was kind of going through something similar जैसा Eminem, because family issues, not racism, obviously not racism, but पारिवारिक दिक्कतें जैसी एमिनेम गुजर रहे थे, तो उनको सुन के लाइक यू नो सेड आई एम सॉरी मामा, लाइक टुनाइट आई एम क्लीनिंग आउट माय क्लोजेट, लाइक ऑल दोस सॉन्ग्स. तो दैट एंड प्लस ही वाज अ बुलीड किड, आई वाज अ बुलीड किड. सो मुझे एमिनेम का जो एक इन्फ्लुएंस आया एंड इट रियलाइज कि भैया जो अंदर जो गुस्सा है, जो दर्द है, ये एमिनेम की तरह मैं भी लिख के निकाल सकता हूँ. इज व्हेन आई ट्रांसफॉर्म्ड माय क्रिएटिव राइटिंग इनटू रैप. In fact, I even wrote a 9-song album in 2013. It will never come out. It will never come out. It is stored somewhere in my, but it will never come out, man. It makes me cry, but it was just, that was my venting out. It's like a boxer ने 12 पंच मार के गुस्सा निकाला, मैंने वो 9 गाने लिख के सब बयां कर दिया जो भी अंदर था, मतलब. Okay. So this is very interesting, bro, because I wasn't expecting like Shakespeare. I was definitely एक Eminem का idea था मुझे, but like obviously Eminem, so but having influences from Shakespeare, because even I am from convent and I understand the kind of literature
convent We schools have में होता choirs, है. yaar. We have choirs, which is so musical in convents. Yeah, exactly. And but मुझे like I'm just like sort of, again, people are different, but मैं सोच रहा था कि I never thought about Shakespeare in that way. Like writing was never my thing. So it's very interesting to sort of get this perspective कि Shakespeare से there's creative writing, and then there's like there are circumstances, and then हाँ. you have Eminem, and then like एक तरीके का transformation sort of. So Correct. uh, right, so that happened. And but were you thinking of yourself as someone who wants to become a rapper? ऐसा था, या you were just sort of writing? So I thought that I can become a rapper in 2014. That Hmm. I thought will be a rapper. I decided that in 2014. But I mean, करियर वाइज तो देखो ऑनेस्टली तब इतना कोई सीन था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कितना आगे जाएगा. बट आई इमेजिन्ड माई सेल्फ एज अ रैपर. आई वोंट से आई टाइटल्ड माई सेल्फ एज अ रैपर. आई इमेजिन्ड माई सेल्फ कि मैं एक रैपर हूँगा. Right. मतलब अगर इंडिया में कोई सीन नहीं होता तो मैं शायद एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट रहता जो अनहर्ड होता, पर मैं होता. मतलब मैं रहूंगा और मैं रैप करता रहूंगा, और जब मरूंगा रैपर की तरह मरूंगा. मुझे ये मैंने 2014 में विजुअलाइज कर लिया था काइंड ऑफ All कि right. रैप तो मैं करूंगा. और प्लस क्योंकि मेरे शहर में कोई कर नहीं रहा था, तो मुझे वो भी आया कि शिट मैं कुछ नया कर रहा हूँ. लाइक अंटिल आई केम टू बॉम्बे एंड थिंग्स हैपेंड, तब तक मुझे एक अपनी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी पे एक थोड़ा गर्व भी था कि यार मैं कुछ नया कर रहा हूँ एक छोटे शहर में. एंड प्लस आई गॉट अ लॉट ऑफ लाइक I'll not say fan following, but yeah, a lot of people in my school used to dig my music. मतलब they still do, they still respect me. So उससे मुझे एक उम्मीद थी कि कुछ तो कर सकते हैं. I even Right. released a song about this called Bitter Truth, but वो थोड़ा off meter था, मतलब थोड़ा unprofessional से, so I deleted it off the net. I was trying to That find it, bro. I was trying to find it, and it's so on this was you. SoundCloud. Yeah, okay, I'll have to look into it. But this was when you called yourself Scandy, right? You went by that name. Yeah. Yeah. Okay, interesting. Uh, so Lucknow में at that time, what was the situation like? Not in terms of just hip hop, but एक culture wise, एक music culture wise, हर city में रहता है अपना अपना एक scene. जैसे like let's say Bombay में during a particular like early 2000s and all, there was like a lot of metal scene going on. The same transferred to Pune. तो वैसे लखनऊ में Jazz was क्या also scene there. था? Yeah, exactly. तो क्या scene था? लखनऊ में देखो म्यूजिकली तो मतलब देखो ऑब्वियसली लखनऊ का पूरा हिस्ट्री में जाओ तो गजल एंड ऑल दैट सूफिज्म एंड, बट ऑनेस्टली वो लखनऊ की उस तरफ हम कभी गए भी नहीं है. लेट्स जस्ट एग्री टू दैट. Okay. लाइक इट्स लाइक कि मैं बॉम्बे से हूँ बट मेरे को पोर्ट्स में क्या हुआ कुलाबा में मुझे नहीं पता. मैं मलाड से हूँ. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो Right. वो कल्चर की तो क्यों प्रिटेंड करें कि हम उस कल्चर के पार्ट है कि हम नहीं है. वी आर Fair, नॉट अ fair. पार्ट ऑफ दैट, है ना. बट अगर ऐसे बात करें तो बॉलीवुड कवर्स वाज समथिंग दैट वाज वेरी कॉमन. Okay. Like the best singers were the ones who could sing an Amit Trivedi or an Arijit track, and the Right. bands used to do renditions of all these famous bands. So originality was not a concept. Okay. Shows that happened were also Bollywood covers. All The right. artists who came were all also Bollywood artists. So authentic Lucknow original ऐसा कुछ सीन ही नहीं था. जो था it was just a rendition of Bollywood and Lucknow's way of accepting it. ठीक है. मेरे पहले ये बोल सकता हूँ कि एक रैपर था, मतलब जो मतलब मेरे को लगता है वो लखनऊ का फर्स्ट रैपर था डूड. मतलब आई डोंट नो व्हाई, मतलब ही स्टिल देयर बट ही इज काइंड ऑफ इन हिज जॉब एंड ऑल दैट, बट he released a song on MTV in 2014. Fuck, dude. What's his And name? his name was KD Rapid. His name was KD Rapid. Okay. KD भैया बोलता हूँ मैं उन्हें. He taught me what's a meter. He taught me BPM. He taught me what is ciphering. He taught me how to rap on a beatbox. And he, along with the collaboration with a brand called Trishna that came on India's Got Talent, they released a song on MTV. They shot a fucking music. Sorry for Magali, but they shot a fucking Like you can curse. shot a fucking music video with a fucking car and girls in swimming pool, everything in 2014. Bro, and that too like from a city. मतलब Dude, Lucknow से I don't see, think anyone would I'm getting expect. goosebumps. I'm getting goosebumps, dude. मतलब, can you imagine KD? मतलब MTV, dude, fucking MTV. Yeah.
and we used to cipher. Then there used to be 2 beatboxers, him, me, like 4 people ciphering, people passing by laughing on us ki kya kar rahe hain, but he taught me what's a meter, he taught me how to flow, matlab he taught me a lot of things. He's still doing stuff, but he's kind of caught up in his job, and the only problem with him was that जो उन्होंने rap उसमें करा था उसमें कुछ लखनऊ की बात नहीं, like he was very English because 2014 में तो यार हिंदी रैप I know. था यार, बोहेमिया हनी वनी का चल रहा था, बट तब भी बहुत बंदे बहुत प्राउडली इंग्लिश करते थे, पता है? जो बॉम्बे के भी ओजी रैपर्स है, डिवाइन को ले लो, वो भी फक्र से इंग्लिश करते थे. तो इस बंदे ने इंग्लिश में रैप किया था, अच्छा था, बहुत लेजिट था, बट इट्स जस्ट दैट कि बिकॉज वो वैसा था तो इट काइंड ऑफ कभी कल्चर को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया. मतलब लखनऊ को he could not represent Lucknow. He couldn't represent Lucknow. In fact, he couldn't represent himself because he was trying to be somebody else by rapping in English. Because he comes from this शहर. We know that fact कि English जब आप करते हो, अगर आपकी वो original, like बॉम्बे की कुछ बच्चे English अच्छे करते हैं because बॉम्बे में English is kind of a first language also. वहाँ पे बहुत बच्चे हैं that live in Khar and you know like or the Christian areas maybe they speak English as their first tongue. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ घर होंगे जहाँ के मॉम डैड बहुत अच्छे English टीचर बोलते होंगे, but we you know what I'm trying to say कि वो representation इतना नहीं हो सकता of a city like Lucknow in English. So उस वजह से वो एक्चुअली बहुत लोगों के बारे में पता भी नहीं है. लाइक वो मेरे स्कूल के लोग जानते होंगे, बट जो हिप हॉप सीन लखनऊ को वो शायद जानते ही नहीं. उनको पता होगा कि मैं पहले से हूँ बिकॉज उन्हें अपना कुछ निकाला नहीं यूट्यूब पे. सो आई रियली वांट टू ब्रिंग हिम इन ऑन अ ट्रैक एंड यू नो डू समथिंग अबाउट हिम, गेट हिम ऑन माय शो और समथिंग. आई विल डू इट बिकॉज ही डिजर्व्स दैट. बट या दैट्स देयर. एंड ऐसे बहुत रैपर्स बहुत शहरों में यार जो कब के आके चले गए, मतलब दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी. सो या दैट वाज he was a great influence who told me about a lot of commercial aspects of it, writing part of it. He even told me 2014 में कि merchandise कैसे बेचते हैं. मतलब I was like, dude, crazy. He was a crazy influence. I mean, it's just like, मतलब I can't even process it, bro, because it's I mean, it's good, like we've spoken about him. Like I'll definitely look up, देखता हूँ मैं क्या scene है. But this is crazy यार, like in a place जहाँ culture ही नहीं है, मतलब original music कुछ नहीं है. And correct, like you are sort of representing your city, your place, yourself from there. So so like as Candy, you started as Candy, right? Yeah, Scandy. Yeah. So Scandy. Yeah. No. Uska bhi I'll segue into that बाद में. Cool. So how were your initial days like recording tracks like Nawab हो गया, फिर Bitter Truth हो गया, like how ये कैसा scene था? So I have these two friends who kind of I owe my life to them. They are twin brothers called Harsh and Dhruv. They don't do music anymore, but they started making EDM tracks in 2013 on FL Studio. Okay. So they introduced me to music originality. Like I used to go to their house and they used to make EDM songs and dubsteps and you know like that entire Avicii and all David Guetta kind of things in 2013. So they told me कि ऐसे होता है, ये होता है. So, and then there was this another friend of mine called Ritik who has shot a lot of my videos. So he was into cinema, he was into video making. So we have a director, we have a music producer, and we have a rapper. So we already have a team in 2013 and we don't know what to do. So that's how we came together and we traveled all the way to some city to shoot Bitter Truth. Like we legit went on we took a car, we went to some city, we scouted locations, like dude we recorded on his laptop only. Then I had an iPad, so I recorded on the iPad. ये नेजी जैसी स्टोरी लग रही है, पर मैंने भी iPad पे रिकॉर्ड करा, फिर उसको जो भी मिक्स मास्टर ये वो. बट वो थे कि उनकी वजह से I was introduced to a lot of musicality because मतलब they, in fact, both of them and Ritik, the four of us came to Bombay together with the aim of being in this industry. Them as musicians, me as a rapper, and Ritik as a director. So it started like that they were the core reason for me. Like imagine 4 kids from a city like Lucknow where everybody wants to do engineering and this and that, standing up and saying कि हम cinematographer बनेंगे, हम music producer बनेंगे, हम writer बनेंगे, हम rapper बनेंगे. They're like but because their mother, shout out to Harsh and Dhru's mom, even though she was the principal of the school and their kids scored 95 plus, they could have gone to any college in dude. They could have been anywhere, but they risked. But उनने risk उठाया तो mom को लगा ये उठा सकते हैं तो हम भी भेज देते हैं. तो
that kind of was our vision. They were the like kind of कि जिनने कहा कि चलो अब कुछ कर सकते हैं इनके बारे में. So that was being to their house, रात में बैठ के कोचिंग बंक मार के गाने बनाना. मुझे तो पता ही नहीं था कि पॉप बीट क्या होती है. तो ईडीएम पे रैप कर रहा हूँ. मतलब Crazy, man. it was legit fun. मतलब बहुत पुरानी बात है यार ये तो. बट मस्त था यार. Because मतलब कैसा होता है कि when let's say like someone wants to abhi जैसे someone wants to start rapping is also like decent at it. अभी in cities like bigger cities एक community है, there is a support system, एक direction है. तो like even if you're rapping decently there is someone at least noticing you कि भाई यहाँ पे कोई तो कुछ तो कर रहा है. But लखनऊ में like you guys don't have a community. Like तुम चारों ही तुम्हारी community हो. You get it? Like मतलब it's like you sort of एक तरीके से वही you are like the pillars for a foundation that is like sort of there. It's just that we left. I think you have a track about this, right? Yatayat, I think is it a track about that? यातायात में तो इस बारे में बात है कि क्यों बॉम्बे जाना पड़ता है for anybody. I mean it's sort of वही ना निकलना. It's the रातों रात को यातायात या बट दो जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास इस पूरी स्टोरी के ऊपर एक 10 गानों का एल्बम है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ. Oh shit, crazy. So you have an album coming. So a lot of things that I'm talking about will be there. Like the first track is somewhat called 2014 only. So I want my entire story to be out there. Because मुझे लगा मेरा कोई इंटरव्यू लेने वाला है नहीं, पर आज तू ले रहा है. बट आई थॉट कोई और मुझसे पूछने वाला है नहीं, तो मैंने खुद ही सोचा कि मैं बताता हूँ अपनी कहानी. So I have been working on it from 4 years and उसमें सब है. मतलब वो अगर तुम एक बार लखनऊ के बंदे हो, एक बच्चे हो और तुम वो सुन लोगे तो तुम हमें जान जाओगे. ठीक है, मतलब it's an article on me. But I think I had to do it, man. मतलब I had to do it. No, I'll definitely like sort of I'll just like touch a few points. I won't ruin the album here because it's a proper, I mean 4 years if you're taking, तो भाई सही है. So like how do you stay optimistic in a situation like this where मतलब 3 लोग ही support system है. There's like only like a few close people sort of putting faith in you, and then there is no scene around you. So what goes ये मतलब the whole hustle, struggle, optimism, anxiety, whatever you're feeling, how do you not break or maybe break and mold? Like what's this ये कैसे scene है? प्रॉब्लम है कि जब ये सब चल रहा था ना, हमें ये सब पता ही नहीं था. मतलब मुझे ऑप्टिमिज्म वर्ड भी नहीं पता होगा. आई डोंट नो, लाइक मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज अ ब्रेक, व्हाट इज आर्टिस्टिक स्ट्रगल्स, वी डिडंट नो. वी वर जस्ट किड्स, मैन. 4 किड्स. मतलब हाउ ओल्ड वर यू? गाने बना. आई इमेजिन कर ले अगर मैं होऊंगा कुछ 14-15, आई डोंट नो मैन, कुछ छोटा ही होऊंगा. मतलब 11वीं में कितने साल का होऊंगा, तो हमें क्या पता यार ये सब. बस हमें पता था कि मैं बताता हूँ, मैं तो दिल से बताता हूँ. देखो, पैसे थे नहीं. मैं तुम्हें अपने शहर के पीओवी से बताता हूँ, ठीक है. लखनऊ में मतलब मेरा एक गाना भी है इसके ऊपर, एटन. एटन इज अबाउट दिस ओनली कि एटन क्या होता है. तो एटन व्हाट इज एटन मींस एटीट्यूड. ठीक है. तो लखनऊ शहर में एटन आने के 3-4 तरीके हैं. या तो तुम्हारे पिताजी सरकारी कुछ करते हैं, या तो उनका धंधा है, या तो तुम नेता के बच्चे हो. तो तुम्हें जो अकड़ होती है वो आती है तुम्हारे पिताजी के पैसे से, तुम्हारी गाड़ी के साइज से. ठीक है. तो हम 4 बच्चे जिनका ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, अब वो अकड़ कहाँ से लाएं. तो ऐसे में क्या होता है कि देन यू स्टार्ट लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स कि मेरे में क्या लगे. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो व्हेन आई सी कि डूड माय फादर इज द फकिंग व्हाटएवर एमएलए ऑफ दिस पार्टी ऑफ दिस सिटी, आई एम लाइक डूड फक डूड, यू हैव द पावर. तो फिर मैं अपनी बात करूंगा, मुझे पता है मैं करता हूं यार, मैं रैप करता हूं. तो 2013-14 में जब तू सुनते हो ना रैप करता है, क्या करता है भाई वो हनी सिंह वगैरह जो करते हैं. मैंने कहा हाँ, पर उनसे अलग करता हूँ, मतलब थोड़ा अलग स्टाइल है. कहता है अरे मस्त यार, ये लोग तो कुछ, ये तो आर्टिस्ट हैं. तो यू सर्टेनली गेट अ रिप्रेजेंटेशन यार. यू आर समबडी नाउ. back then attaching like जब मेटल है, कोई लखनऊ में लड़का बोलेगा ना मेटल हेड, लोग पागल हो जाएंगे. क्या मेटल हेड, क्या तू लोहार है क्या? समझ रहा है. मतलब any music genre, if you start anything here, you are a clutter breaker, you are a disruptor, you are an OG because there's nothing there. समझ रहे हो. like मैं और भी चीजों में हूँ. आई थिंक मैं लखनऊ का पहला शू ब्लॉगर हूँ. लखनऊ में कोई शू ब्लॉगर है ही नहीं.
स्नीकर कल्चर ही नहीं है लखनऊ में, स्नीकर कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसे बैंगलोर में करता है, पुणे में करता है, बॉम्बे में करता है, दिल्ली में करता है ही नहीं। मैं मुझे लगता है पहला स्नीकर हेड हूँगा, तो समझ रहा है मतलब, because it's a small town. If I go to a more smaller town, if I start drinking an espresso coffee, I might be the first guy to drink espresso in Agra. Getting what I'm saying? So back then when you are nothing, your parents are giving you nothing, and then you suddenly find an art form, you suddenly break from the crowd. तो हमें आगे का तो हम सोच ही नहीं रहे थे, हम उस वक्त की जो हमें एक्सेप्टेंस मिल रही थी, हम उसी में खुश हो रहे थे कि ब्रो क्रैक कर लिया, इंजीनियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नेता के बच्चे नहीं है, बिजनेसमैन के बच्चे नहीं है, रैपर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, सिनेमाटोग्राफर है, आओ देख लो क्या करना है, ये एटर्न है, तो समझ रहा है। सो इट वाज जस्ट, I mean, you can say that we were trying to be cool. Maybe we were, but our circumstances forced us to be cool, man. मतलब and but यही है कि पता है, मैं तुझे बताता हूँ प्रॉब्लम है कि ना, वो जो मैं तेरे को बता रहा हूँ, वो जो 9 गानों का एल्बम 2013 में लिख दिया था, वो स्टोरी यार मैंने कभी बताई नहीं, मैं कभी बताऊंगा नहीं। बहुत सारे रैपर्स होते हैं जो अपनी कहानी बता देते हैं, जैसे डिवाइन पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ बोल चुका है अपने गानों में, है ना, और बहुत भी लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल सकता यार, बिकॉज आई डोंट वांट लाइक थिंग्स टू गो बैड, मतलब कोई स्टोरी बाहर आए। बट अगर मैं वो करके स्टार्ट करता ना अपना करियर, तो शायद मैं आज अलग ही होता, मतलब तू समझ रहा है, बिकॉज फिर मैं कूल से आता ही नहीं, उनको लगता डूड ये तो एमिनेम वाला सीन होता कि ब्रो कितना जेन्युइन है, अपना हार्ट आउट कर रहा है। पर मैंने वो नहीं किया, मैंने अपनी भड़ास निकाली, बट मैंने इतना पर्सनल वो नहीं डाला। अभी थोड़ा थोड़ा डालने लगा, थोड़ी राइटिंग मैच्योरिटी आ गई है, तब मैंने वो सब डाला नहीं। तो उससे क्या हुआ कि जो इमोशन वाला एस्पेक्ट होता है ना आर्टिस्ट से जुड़ा, वो नहीं जुड़ा, कूल वाला जुड़ गया। तो समझ रहा है? तो उस टाइम पे ये करने से हम कूल बन रहे थे कि भैया, तो ये सोचा ही नहीं कि करियर वरियर क्या, हमें बस ब्रेक थ्रू करना था, इस भसड़ से यातायात करना था, मतलब इस कुएं से, लाइक, मतलब you had achieved that एटन जो चाहिए था। क्या मैन, रैपर इन लखनऊ, मतलब एटन इज अ लखनवी वर्ड। या हाँ जी लखनऊ हमारी लहजे का शब्द है। हाँ, तो आएंगे क्लासी देहाती में भी आएंगे, उसमें तो पूरा करना है, ब्रेक डाउन करना है। नो बट लाइक दिस क्रेजी, लंबा चलने वाला है ये। हाँ भाई, बट लाइक इट्स क्रेजी यार, मतलब सो like for the people listening to this, I came across Skand on Clubhouse during one of the sessions, and Skand was talking about how like there are not a lot of shows happening and in Lucknow, and there's not a lot of exposure. So like that is how I sort of went on your Instagram. मैंने क्लासी दिया थी, सुना, I'm like भाई ये तो सही है. So like I had to like get you, like I had to understand कि क्या है bro यहाँ पे scene. Really appreciate that bro, मतलब मेरे लिए this is like this needs to be out यार, क्या चल रहा है लखनऊ में, so that कुछ हो चालू in some capacity at least, and like I'm glad that है यहाँ पे बंदे, देख ऐसा नहीं कि लाइक मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ के जो नए रैपर है वो मुझसे ज्यादा मशहूर है। लाइक कबीर जो बंदा है, कबीर, उसको मेरे से बहुत लोग ज्यादा जानते हैं, उसकी काफी इज्जत भी है, ठीक है। आई वुड, बिकॉज उसने, वो भी डिस्टर्बर है यार, कानपुर से उठ के आया, उसने यहाँ पे जो भी साइफर वाइफर स्टार्ट किया, आई डिडंट हैव द बॉल्स टू डू दैट। मतलब मैंने उतना कल्चर यहाँ पर्सनली स्टार्ट किया होगा, बट ऑन ग्राउंड नहीं किया जितना उसने करा, क्रू बनाया, सब कुछ करा, ठीक है। ऑब्वियसली जिस एरा में उसने स्टार्ट किया तब तक गली बॉय आ चुकी थी, तो हिप हॉप का एक काइंड ऑफ बेस बन गया था, बट स्टिल यार वो मुझसे ज्यादा मशहूर है। और मैं उन लोगों को मैसेज करता हूँ, मुझसे मिल लो, मतलब मेरे साथ कुछ कर लो, मतलब, एंड देन वो बोलते भाई आप तो 2000 आपका गाना आया था ना, वो नवाब 5 साल पहले, कहता हाँ यार आया था, पर मैं ना लूजर टाइप हूँ यार, तुम लोग मेरे साथ कुछ कर लो यार। मतलब आई एम naked in front of them because those guys have done more things than me. I am a loser in front of them. I know that. मेरी पहली EP 2021 में आई है ब्रो। I mean, my first EP is in 2021. They already have 2-3 projects and they started 2 years back. No bro, भाई मतलब, but like वही तो सीन है ना कि it all depends on कि all components पे depend करता है ना, तुम्हारे पास components क्या है। Like you did the best during your time, जितना you could do, and like I said, like अपन कल फोन पे भी बात कर रहे थे, I said कि सबका एक अलग टाइम फ्रेम रहता है and everyone operates on their own, like in their own time frame. तो I think it's like ऐसा कुछ सीन नहीं है कि EP अभी आ रहा है या तभी आया था या तभी कुछ और डालना चाहिए था, तभी कुछ और करना चाहिए था। I think whatever, like तुम्हारी जर्नी, there's no right or wrong ना, तुम्हारी जर्नी तुम्हारी जर्नी, you get it? Correct. So I also came across एक मूड का वीडियो, मूड इंडिगो पे, तो वो क्या सीन था? Did you like go to colleges and all? वो सीन भी था?
So I was kind of privileged when it comes to colleges because I was studying in this college called Mitibai, ठीक है, and Mitibai बॉम्बे का एक बहुत ही prominent college है, What do and you you get study? BCom. कोई मेहनत नहीं. Yes. So I mean when you study in a college like Mitibai, you get opportunities. Let's just. तो मैंने उनका भी इतना इस्तेमाल नहीं किया, पर ठीक है मैं बता रहा हूँ. तो Mitibai की वजह से I got to get to go to these Mood Eyes and you know. Yeah. So वहीं पे I went to this and Mood Indigo show and I performed this song and MEV was judging. Okay, this was what year? अब मेरे को भूल गया वो 2017 16 17 I think 17 का था. 17. So MEV was judging. There was Mumbai's Finest was there. Nice. I think so. These guys were there. I think these for the Poetic was there also there. I don't know. But ये लोग थे. तो वो गाना मतलब बहुत close है यार मेरे दिल के मतलब because मतलब if you want to know about the song मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा because that's in my album. वो गाना नहीं कोई सीन नहीं है bro, कोई सीन नहीं. रोज़ की कहानी तो तूने सुनी लिया रोज़ की कहानी, तो रोज़ की कहानी is in the album. Okay. रोज़ की कहानी is one song in the album process started back then, dude. Like if every year मतलब मैंने लाइफ के हिसाब से एल्बम लिखा है, समझ रहा है? जैसे जैसे इंसिडेंट्स होते गए मैं एल्बम लिखता गया. So it has a timeline to it. So रोज़ की कहानी was a part of the album. Yeah. Crazy, bro. And like I really like, I mean वो on purpose रहेगा या नहीं रहेगा I don't know, but the fact that you're taking so much time for an album and giving it that much attention is how an album should be made. मतलब I really feel that. That's called an album. Exactly, because I personally don't fuck with projects जहाँ पे nothing is making sense and it's just like a compilation of 9-10 songs, bro. It doesn't make sense for me. जय श्री राम, किसी ने तो ये बात बोली, जय श्री राम. नहीं bro. भाई, like, a lot of people feel that. Like it's not just me. मतलब मैंने काफी मेरे करीबी दोस्तों से भी बात की है इसके बारे में. And like we have a similar views. And अभी जाके I think I may be wrong, but hip hop में एक album culture आ रहा है. Like इंडिया में लोग album डालना चालू कर रहे हैं और लोग सुनना भी चालू कर रहे हैं. पर जैसे एल्बम पहले आते थे ना, अभी नहीं है. लाइक ऑनकोर एक रैपर है बॉम्बे का, उसका एक एल्बम है लिब्रा स्केल. Yes. Dude, and like Encore, he is my favorite rapper in this entire country. Bro, OG. I idolize him. मतलब अगर मेरे को लाइफ में ना ड्रीम सॉन्ग, it is not with Eminem, it is with Encore. And if I can write a verse that can be an Encore track, then मैं जीत गया हूँ. मतलब I just love him to death. मतलब I can't. मतलब he is just a god to me. And Encore का एल्बम जो उसने लिब्रा स्केल कब निकाला था भाई बंदे ने, CD निकाली थी भाई, कब निकाला था? 2017 या 16 में कभी आया था. I think it was my first year in Bombay. वो एल्बम में राइटिंग है. या फिर पोएटिक का एक एल्बम था ग्रेटनेस. तो मतलब पहले स्टोरी टेलिंग, अभी भी पोएटिक का एल्बम आया है ग्रीन हाउस, इट्स आल्सो नाइस. बट वो जो एल्बम था ना ग्रेटनेस, डूड स्टोरी टेलिंग, डूड मतलब कैरेक्टराइजेशन, मतलब देयर वाज जस्ट सो मच, देयर वाज अ एल्बमनेस टू द एल्बम यार. जैसे बाहर आते हैं, like if you listen to Nastradamus, if you listen to all these यार, मतलब Blueprint सुन ले, जो बाहर के अच्छे like prominent hip hop albums हैं, तो वो सुन ले. और तू ये सुन ले यार, Good Kid in a Mad City सुन ले, Forest Hill Drive सुन ले. तो उनमें जो एक स्टोरी लाइन, एक पैटर्न, लाइक जो इट्स लाइक अ मूवी, तो वो कल्चर पहले था. पर अभी ये हो गया कि मेरे एल्बम में गाने कितने चलेंगे. तो स्टोरी लाइन एल्बम्स यार, मतलब मैंने सच्ची में पता नहीं यार कौन सा है लास्ट, मुझे याद ही नहीं आ रहा यार अभी लेटेस्ट में कोई लाइक स्टोरी लाइन एल्बम. डिवाइन का एल्बम भी स्टोरी लाइन एल्बम नहीं है यार. मतलब इट इज आल्सो डब ऑफ 9 सॉन्ग्स. मतलब आई डोंट नो स्टोरी लाइन एल्बम्स एग्जिस्ट करते भी हैं क्या आजकल, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. एल्बम के लिए पेशेंस लगता है ब्रो. एल्बम इज नॉट लाइक अ सिंगल जैसा ट्रीट ही नहीं कर सकते उसको. एल्बम इज अ बॉडी ऑफ वर्क ना. तो मैं वही बोल रहा था, इसके करेक्ट. सीधे मौत का बयां इज समथिंग व्हिच हैज सम स्टोरी टू इट. Yeah, correct. Bayan is something which has some element, some story to it. Then उनके आगे के गाने बयां से अलग हैं. तो those guys are following a storyline. Like सीधे मौत कर रहा है, but प्रदीप के album has a story to it. वो जो पूरा classic है, that is true classic. is classic है वो यार. उसमें yeah, classic पे also they've worked so much. Like I've seen ये excess गाना है कल जो गाना है, मतलब वो जो their entire night sequence, I've seen it. मैं दिल्ली रहा हूँ and I've seen that happen कि पंजाबी सरदार जा रहा है, किसी ने मारा है. It is authentic to the fucking core. That is writing. मतलब तुम्हारा मैं तो ट्रिप करता हूँ यार प्रभ के उस गाने, मतलब उन एल्बम्स पे. तो वही मैं कह रहा हूँ, इन सब को भी 2 साल हो गए हैं, बयां को भी टाइम हो गया है और इसको भी टाइम हो गया है. तो पता नहीं नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग एल्बम कब आएगा यार इस क्लटर में. आई डोंट नो.
मतलब मैं डालूंगा बट मुझे तो स्ट्रीम्स मिलने वाले हैं नहीं, मैं यही नहीं बैठा ब्रो, रहूंगा। ऐसा कोई सीन नहीं है ब्रो। मैं बोला योर जर्नी इज पता योर नहीं। जर्नी, बट सही है ब्रो, लाइक इट्स ग्रेट दैट यू आर टेकिंग सो मच टाइम। बट सो व्हेन डिड यू शिफ्ट टू बॉम्बे, कब की बात है? 2015 सो right after college. ओके, no no, so during college also you were in Bombay only ना? कॉलेज तो बॉम्बे से करा ना, हाँ या हाँ, so वो कॉलेज, ओके, तो हाउ वाज द शिफ्ट फ्रॉम लखनऊ टू बॉम्बे, कैसा लगा बॉम्बे आके? यार तो मैं तुझे बताता हूँ, द इवन तो बॉम्बे एक गाना आया था 2014 में कॉल्ड द बॉम्बे रैप साइफर। इट हैड डिवाइन, ऑनकोर, डी विल, पोएटिक जैसे एमटीवी पे एक सीरीज आती थी साइफर्स की, उसमें दिल्ली रैप साइफर था, बॉम्बे रैप साइफर था और बैंगलोर का था, इसमें ब्रॉडा वी और ये सब थे, स्मोकी वोकी। तो मैं वो देख के बॉम्बे गया था क्योंकि मुझे लगा कि शूट वहाँ पे एक हिप हॉप सीन है ब्रो। मतलब आई काइंड ऑफ मेंशन्ड ऑल दिस इन माय एल्बम आल्सो, आई वोंट गो इनटू द डिटेल, बट तो वहां जाके एटलीस्ट आई मीन ऑब्वियसली कल्चर वाइज तो मतलब आई एम कमिंग आउट एक्चुअली जो तू ना अभी वाला है लाइक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, उसमें इस बारे में मैंने बहुत बात की है दैट उसकी एक लाइन है कि मुंबई की कॉलेज की जब मैंने फीस दी कि मैंने एंटर एक दूसरी ही सदी, लाइक इफ इट वाज अ सेंचुरी अहेड, you know, like it was a century ahead dude, like Bombay was a century ahead because मुझे वहाँ बहुत चीजें बहुत अच्छी लगी, मतलब it is just a beautiful city, it taught me, like it made me who I am today, and मुझे वहाँ जाके realize हुआ कि क्या stupid लोग हैं यार लखनऊ में। मतलब और नॉट जस्ट इन लखनऊ मैन, इन मध्य प्रदेश, राजस्थान में सब जगह ट्रैवल किया है, कितने स्टूपिड लोग हैं यार हर जगह। मतलब लोकल की भीड़ में एक आदमी है जो कंपनी का सीईओ है, वो तो बगल में 5 रुपए का टिकट लेके खड़ा है और वो बता नहीं रहा है मैं सीईओ हूँ, वो तुम्हारे साथ जा रहा है, वो धक्के भी उतने खा रहा है, उसको वही पसीना आ रहा है, एंड ही इज नॉट सॉरी अबाउट इट, ही इज स्मार्ट अबाउट इट बिकॉज ही सेविंग टाइम। प्लीज अग्री टू दिस, ये भी नॉर्मल चीज है, समझ रहे हो? मतलब तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है लाइन तोड़ने की। ब्रो अपन रैंट के लिए एक अलग एपिसोड करेंगे फॉर श्योर। हाँ मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि नहीं नहीं, आई इट गेट वाज अ इट, आई बिग गेट कल्चरल डिफरेंस, एंड स्पेशली हिप हॉप वाइज तो मैं आई वाज डैजल्ड बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक, मैं तब की हिप हॉप सीन की बात कर रहा हूँ बॉम्बे की, जब बॉम्बे हिप हॉप सीन वाज नॉट बॉम्बे जो अभी है। तुम्हारे राइटिंग में कोई फर्क, कोई डिफरेंस, कोई नई इंस्पिरेशन, ऐसा कुछ था? राइटिंग मैच्योर्ड because it gave me more point of views. Originally the my I was stuck with one thing कि मैं छोटे घर से हूँ, लोग बड़े घर से होते हैं, मतलब all those मतलब basic small town rants, but यहाँ के I opened up to more aspects of life and that kind of showed in my writing, be it romantic angles, be it मतलब not political point of views, because then I saw my state from a different city which has a better political system Yeah, and a okay. better, so it kind of opened my point of views towards approaching my roots. मतलब मैंने लखनऊ तो कभी नहीं छोड़ा यार बात करना अपने गानों में, तो बस आई जस्ट बॉम्बे आके मुझे और एंगल्स मिल गए थे लखनऊ अप्रोच करने के लिए। मतलब राइट। लाइक बीएड की एक लखनऊ की लड़की और एक बॉम्बे की लड़की में कितना फर्क होता है, या एक लखनऊ की लड़की बॉम्बे आके कितना बदल जाती है। मतलब तो मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स इज काइंड ऑफ गिव मी मोर वेज टू लुक एट लखनऊ। राइट राइट, एंड that's interesting because like I actually was going to ask you a question regarding, and ये मैं हर तरीके के राइटर को पूछता हूँ कि what will happen the day like you sort of like स्टोरीज ही खत्म हो गई तुम्हारी, तुम्हें like तुम चालू करते हो लिखना और कुछ है ही नहीं लिखने को, बट इन योर केस आई थिंक इट्स क्रेजी बिकॉज अमाउंट ऑफ like अभी तो आई थिंक यू स्टार्टेड like यू sort of एक तरीके का तो टेक ऑफ किया है, बहुत तो यू स्टोरीज हैव अ है, लॉट ऑफ बहुत स्टोरीज है, लॉट या ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स, काफी कुछ है, तो आई प्रोबब्ली नॉट आस्क यू दैट, बट या या एक चीज, आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द लाइन वाज स्कंद ने स्कैंडी पे पाली uh, विजय, हाँ स्कैंडी ने पाली, स्कंदर पे पाली सॉरी, विजय। हाँ, सो दैट वाज कैंडी ने स्कंद पे था क्या, या स्कंद? just me, आई थिंक पहुंचा बॉम्बे बदला नजरिया, पहुंचा बॉम्बे बदला नजरिया, पैसा से ज्यादा कला की कदरिया, जैसे जैसे रैप से हुआ परिचय, स्कैंडी पे स्कंदर ने पाली विजय, या सो इट वाज ओके। स्कंद हैड टेकन ओवर स्कैंडी इन बॉम्बे, या That's what. So I want to ask you about the transition from Scandi to Skand, because
मतलब बहुत like इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. yeah मतलब because उस गाने में मुझे मैंने ये लिखा है, बट मैं बता देता हूँ. That yeah song is about. so So मैं तुझे बताता हूँ. नहीं, hmm, सॉरी, तू कंप्लीट कर क्वेश्चन. no, because like I really like the name Skand. It is ऐसा दम है नाम में. For some reason I feel that, and it's a unique name. ऑनकोर ने जब मेरा नाम मुझे बोला था, he said, hey Scandy, what's up, Ben, what's your name? I said Skand. कहता है, oh Skand. And when he said Skand, मुझे कहा dude क्या हार्ड साउंड करता है मेरा नाम. And I said I am changing it. मतलब like I thought कि मेरा ओरिजिनल नाम भी रैप नेम हो सकता है. Like ऑनकोर की आवाज में जब मैंने अपना नाम सुना था, dude मतलब Okay, मैं ट्रिप ऑन हिम मैन. मैं crazy. वो मेरा मेल क्रश है ब्रो. No, मतलब I totally get it, bro. Because like Skand, the what it does Skand mean? it means new beginnings. So भाई मतलब मीनिंग में भी दम है और साउंड में भी दम मतलब है जब तो हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, हिंदू पुराण पढ़ते हैं ना, ये सब किताबें पढ़ते हैं, या तो हर अध्याय, हर चैप्टर की शुरुआत से पहले स्कंद बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम एक नए चैप्टर पे जा रहे हैं. ओके ओके सही इंटरेस्टिंग. तो तो वैसे ब्रो हाँ सो या स्कैंडी टू स्कंद कैसी कैसे क्या. बहुत सिंपल आंसर है. आई टोल्ड यू ना कि लखनऊ में जब रैप पढ़ा था तो एक कूलनेस थी उसको लेके, करेक्ट. या कि हमें लगा था डूड हम तो इनसे अलग हैं, हमें रैप आता है, हम कूल हैं, हम पैसा नहीं है ना, यू नो, यू गॉट दैट पार्ट. या So when you're trying to be cool, you the first thing you do as a rapper is get a fucking cool name. And one of my friends said, "Dude, skand kya, dude, just candy, bro." And मतलब that friend of mine, he's in America. तो मतलब उसका एक slang, you know, like bro, scandy, bro. I'm like scandy, ठीक है, ये scandy यानी मतलब ऐसा वो एक vibe में coolness में निकल गया था. But when I realized बॉम्बे की cool बन के कुछ नहीं हो रहा life में. मतलब बॉम्बे में कोई कूल नहीं, बॉम्बे में सब कूल हैं. मतलब डब्बे वाले भी कूल हैं, पोहे वाली आंटी भी कूल है, मैं भी कूल हूँ, अंबानी भी कूल है. बॉम्बे में सब कूल हैं बिकॉज वो बॉम्बे में सर्वाइव कर रहे हैं. तुम बॉम्बे में सर्वाइव करो तो तुम कूल हो, हैंड्स डाउन. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स टू डू इट. You don't need to add a layer to yourself to act cool in Bombay because the city accepts you how you are and then you yourself become a cool guy. So तो then I realized कि यहाँ पे रैप में मैं बस आके इतना बता दूं ना बॉम्बे में कि यो मैं लखनऊ से आता हूँ, जो भी बताता हूँ लखनऊ का गाता हूँ, तो मैं अपने आप में कूल बन गया यार. बिकॉज मैं इतने दूर से आया हूँ, तुम्हें कहानी बता रहा हूँ. मैं लखनऊ से दादर जा रहा हूँ तुम्हें एक स्टोरी बताने. मैं कूल हूँ उसमें. यो माय नेम इज कैंडी, women's take off the panty, मतलब ऐसा मुझे सब करने की जरूरत नहीं है. I don't need to do that. I don't need a layer. I can तो be who I लाइक am and be cool. सो That's ये yeah, ऑनकोर that's ने how. रियलाइज करवाया या इज इट लाइक देयर ये थॉट. तो यार जनरली मतलब एज अ सिटी हिप हॉप सीन, ऑनकोर्स म्यूजिक, मतलब एवरीथिंग टुगेदर जस्ट बूम ऐसा हुआ था. बट आई मीन ऑनकोर को पता भी नहीं होगा यार, पर उसने जब मेरा नाम बोला लाइक डूड आई कैन बी माई सेल्फ. मतलब क्रेजी एंड एंड इट्स वियर्ड दैट या अंकुर का ऑनकोर हुआ है आई थिंक. अंकुर Yeah. का ऑनकोर So हुआ है. yeah, that's crazy. So, या bro, and yeah, so coming to your music, bro, I personally feel that One Tribe, correct, na? Pronunciation, One वन Tribe. ट्राइब. या So, like, या I think when you started collaborating with One Tribe, there was a या shift in your sound, your approach, your representation. तो क्या सीन है bro? गॉडफादर. I'm वो मेरा coming to classy. गॉडफादर है I'm भाई. coming to classy देहाती with that. But like थोड़ा नहीं मेरे बट को बता दे. इज मतलब सो बेसिकली आई टेल यू, सो ये जो मेरा एल्बम है ना, सो आई हैव डिस्कस्ड द एल्बम विद 4 प्रोड्यूसर्स बिफोर एंड ऑल ऑफ देम हैव डिस्ड मी. सो अगर दो पहले प्रोड्यूसर मान जाते तो शायद मेरा एल्बम 4 साल पहले आ गया होता. बट बिकॉज म्यूजिक है एंड सब लोग सोचते हैं करना है नहीं करना है, एंड देन दे गेट अ जॉब एंड मनी, सो दे डिफ्लेक्ट. So ऐसे, and plus honestly I was more focused on building my career in advertising because that pays for everything, that pays Yeah. for this, that pays for everything. So उस चक्कर में भी मेरा इतना फोकस रहा नहीं. मतलब I'll be very honest about it, because obviously you need money man, you need to be on your foot to survive in Bombay, to pay your rent and shit. तो उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा डिफ्लेक्ट होता रहा. But like I told you that this is a guy called Ritik जो वीडियो शूट करता है मेरे. Yeah. तो One Tribe, that is Ashish, he happens to be his best friend. Okay. And Ashish, Ritik and Harsh Roof, they all studied in the same school, which had both cinema and music. So I happened to meet Ashish at Ritik's place. And I didn't know this. And I just went, hey bro, तू क्या करता है? And he's like, bro, I'm a musician. And तब मेरा मतलब मैं एडवर्टाइजिंग में थोड़ा अच्छा चला गया था. मतलब I was kind of doing good. तो मैं ऐसे ही वहाँ चिल करने गया था थोड़ा कि एक ड्रिंक विंक पी लेंगे, वाइन पी लेंगे, चिल करेंगे. तो उसने मुझे बीट प्ले की. तो that song is called No FOMO. एक गाना है मेरा No FOMO.
तो एक्चुअली मैं उस समय नो फोमो में था बिकॉज गली बॉय आ चुकी थी, बट मुझे हम्म उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज आई वाज एक्चुअली मेकिंग, मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग बट आई वाज एक्चुअली हैड एंड आई थिंक आई स्टिल हैव a better lifestyle than a lot of famous rappers, matlab, because advertising pays bro, it does. ठीक है. नाइस, सही है. मतलब though I have seen some really bad times but I have seen good यू आर times, इन गुड Titan देख लो. पोजीशन. Yeah, I am dude. मतलब so मेरे को no FOMO था bro उस वक्त, मुझे कोई FOMO नहीं था. तो जो आशीष गिल उसने कहा ब्रो ये बहुत अच्छा आइडिया है, व्हाई डोंट यू राइट इट. तो मैंने जो फर्स्ट वर्सेस गाने का तब लिखा, उसने कहा अच्छा है ठीक है करते हैं. फिर उसने बोला बट देख ले ब्रो, मतलब एंड ही इज वेरी रिलीजियस अबाउट म्यूजिक, मतलब ही इज अ क्रिश्चियन एंड फॉर हिम म्यूजिक इज लाइक गाली नहीं देना, डोंट टॉक एनीथिंग रॉन्ग, डोंट टॉक अबाउट गर्ल्स इन द रॉन्ग वे, मतलब ना लाइक ये सब पूछता सेक्रेट है है सब एक चीज तरीके को. से. आई गेट इट. तो उससे मुझे लगा, तो उसने ना उससे मिलके मेरा जो अंदर का जो एक रैपर था ना जो नो फोमो में था, वो गाना तो बन गया, बट उससे लगा यार ये भाई ये कुछ तो कर सकते हैं. एंड देन उसने बोला तेरे पास कुछ भी और कंटेंट है, नो फोमो तो तेरा अभी का इमोशन है. तो ना यार मेरा एक एल्बम का सपना है जो आई डोंट थिंक तो कभी पूरा होगा, मैं उसको ठीक करता रहता हूँ. एंड देन आई टोल्ड हिम अबाउट द एल्बम एंड ही इज लाइक आई विल प्रोड्यूस इट, आई विल डू एवरीथिंग अबाउट इट एंड वी विल चेंज द गेम बाय दिस. एंड वहां से आज हम यहाँ पे हैं एंड वी हैव सो मच म्यूजिक टुगेदर. एंड डूड ही इज क्वाइट एल्डर टू मी and he has lived outside, he has lived in other countries, so he has genuinely seen the black hip hop scene, matlab like proper how they do it. And he's way more knowledgeable than a lot of managers and brand people in labels. मतलब वो हिप हॉप को जिस तरह समझता है ना, मुझे लगता है बहुत लोग नहीं समझते. मतलब he he's super talented, not just by musically but you know like he's kind of evolved, he knows a lot, he knows everything. मतलब वो लेबल चला सकता है बैठे बैठे. तो उसने जैसे जैसे मुझे रियलाइज कराया, मतलब हमने साथ में कर 1000 गाने बनाए तो उसमें से 4 सेलेक्ट हुए. मतलब you know like how he pushes me, he made me keep build your own studio, learn to operate the mic. मतलब you know like he kind of brought the स्कंद को वापस जिंदा करा उसने. represent your city, go back to your city. मतलब you know like imagine कि like चकदे में शाहरुख, like I call him चकदे का शाहरुख, I actually call him, his number is saved as चकदे का शाहरुख. So if he is चकदे का शाहरुख for me, चाटा भी मारता है और फिर तो उस वजह से because of his entry मैं मतलब I'm back on my feet as a musician now. Yeah. So bro, with that coming to Classy Dehati, bro, मैं पहले तो I'll talk about I really want to पहले तो like I really love the EP bro. Thanks sir. Because thanks मतलब I really look for authenticity and this EP gives me that. दिखता है कि भाई thanks sir. like मैं रो दूंगा भाई, मैं ऐसे बातें में रोना आ जाएगा. कट कर दियो बस, तू एडिट में हटा दियो, मैं बता रहा हूँ मैं इमोशनल आदमी हूं. हटा दियो भाई. हाँ भाई हटा देंगे, but like I have to talk about this bro because yeah I'm from, मैं कभी गया नहीं हूँ यूपी. I have no idea about the place. मेरे दिमाग में है स्टीरियोटाइप मिर्जापुर. मतलब वो भी नहीं, वो like उसके पहले भी एक स्टीरियोटाइप रहता है भाई. I mean मिर्जापुर I know obviously is exaggerated but hey, like there is a stereotype and yeah for, correct me if I'm wrong, for some reason there is वो stereotype का essence लेके you broke the stereotype for me. Like okay okay. And I also feel कि ये Classy Dehati is like a complete transition for you as an artist. So like could you like talk to me about Classy Dehati and what it represents? Album किसके बारे में है and what are you trying to talk about? So I'll tell you. So this is song जो मैंने क्लासी देहाती रिलीज या प्लान करने के पहले निकाला था, कॉल्ड हमरा वाइब. उसका एक म्यूजिक वीडियो भी डाला है इंस्टाग्राम पे, तुमने देखा होगा अगर देखा तो. सो हमरा वाइब वो समथिंग की मतलब, तो जो उसका कोरस है, जो मन करे खाई बे, जो मन करे खाई बे, कोई टोके तो बताई बे, इज समथिंग माय मेड सेज. ओके ठीक है, it is written by her, it's her chorus. Sitting right here, same place, same spot, mic, listening to a beat by Ashish, and I was trying to do something in alaki and she just मतलब वो पोछा लगा रही है, हम खाई वे जाई वे, एंड मैंने उठाया, मैंने कहा ब्रो वाइब है, एंड देन शिट, एंड देन आई मतलब
सो मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत बार आप कुछ कर देते हो फिर आपको बाद में रियलाइज होता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। तो समझ रहा है मतलब उस वक्त इट वाज जस्ट अ 1 मिनट सॉन्ग, मैंने वो बनाया, शाम तक वो गाना बन गया, मैंने जो भी, तो उस गाने में मैंने मेंशन किया कि लाइक मैं बॉम्बे में देखता हूँ तो आई टेल यू द बेसिस। जो उस गाने में जो सेकंड पार्ट है ना कि जन्म की जगह का सगा हूँ, चाहे जो जाए ना दगा दूं, हमरी भाषा कोड़ा है जो मजाक जीवन से उसको भगा दूं। तूने कपिल शर्मा शो देखा है? या तो देखा जब उनका जोक नहीं होता वो क्या करते हैं, वो यूपी भाषा में बात करते हैं। अरे का अरे अरे हमारे भैया, you laughed? या You laughed? या Now imagine a woman in a gaon called Jaunpur. His son has passed away. You know what will say? हमारे बेटे की मृत्यु हो गई. You'll still laugh, dude. Because that fucking language has been stereotyped as something funny. Thanks to Bhojpuri movies also, but thanks to a lot of other things, that language, Dehati language, is not classy. It has been stereotyped as something funny, and there has been very little representation of that language, of all the languages that I spoke about in Classic Dehati, in a more insightful way. And classy तो तू छोड़, classy तो तू छोड़, मतलब कौन सा ऐसा आदमी जिसने आके वर्ल्ड स्टेज से बोला कि ये नमस्ते हमारा नाम सिकंदर, हम तुम्हें बताना चाहते हैं बहुत बड़े रैपर हैं, they'll laugh. But why the fuck, who gives you the right to laugh on a language? अगर आप मेरे शहर में आके मराठी बोलोगे तो लोग हंस देंगे, इसलिए नहीं हंसेंगे वो लैंग्वेज फनी है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है. समझ रहे? जो कन्नड़ भी आके बोलेगा तो मैं हंस दूंगा, बिकॉज नॉट बिकॉज आई हेट यू, बिकॉज मुझे वो समझ नहीं आ रही इधर इधर आई. बट यहाँ की जो भाषा, जब मैंने बॉम्बे में देखा कि मुझसे कितनी बार एड्स में बोला गया था कि फनी करते हैं ना, यूपी भाषा डालते हैं. The fuck, dude? Who gives you the fucking right to stereotype? Well, I might be exaggerating. I mean, I don't know. Maybe it's that big a problem. Like I remember telling this problem to Azadi ka that guy Mo, and he was like, "I don't relate to the problem, bro." Yeah, because you don't. Nobody does. I'm not in your position not to understand that. तो मुझे बस वो क्लिक किया कि यार इसको क्लासी बनाते हैं ना, right? बनाते हैं ना इसको क्लासी, क्यों देहाती क्लासी नहीं हो सकता यार? तो बनाते हैं. So when I talk about the essence, I'm particularly talking about the language. Exactly. क्योंकि मैं हंस नहीं रहा था जब एल्बम EP सुन रहा था तब. Exactly. I didn't make it. That was the fucking motive, dude. To not make it funny, to make it classy. Yeah. So मेरे लिए when I was listening to it, and like Bhojpuri songs, and also there's, and like you heavily use autotune also, right? Of course. Yeah. Of course. So yeah. Like Bhojpuri songs, where I think they use a lot of autotune that way. They do. Yeah. So you take that element and then you put it into hip hop, and then there is your authenticity. So वो सब kind of factors when I like. ये वाला एंगल नहीं था यार honestly कि भोजपुरी में भी now when you say that is also adds कि उसमें भी autotune use करके वो थोड़ा गंदा हमारा नाना ऐसा वो करते हैं, मतलब exactly. तो मेरे दिमाग में तो वही आया. मेरे दिमाग में तो वही आया because when something has layers to it, you don't know the layers in itself, like ये तो नया chick. So that was that. So this was very very interesting. Like तो मुझे गाने का नाम पढ़ के हंसने को आया कि हमरा वाइब, ओ यू गेट इट. बट मैं जब गाना सुन रहा था आई एम लाइक भाई ये तो मतलब दिस इज समथिंग एल्स. So like for the audience, I'll just like name the tracks: Hamra Vibe, Hamra Struggle, Hamri Queen, Tafri, Hamra Rage. So पढ़ते वक्त it's kind of funny, but like when I'm listening to it, भाई नहीं, there's no the classy देहाती as a title also sounds funny. ठीक है, मतलब it sounds कि कुछ तो क्या क्लासी देहाती क्लासी थोड़ा होता है, मतलब कुछ तो कॉन्ट्रास्ट लेके कॉन्ट्रास्ट. हाँ, तो बट वही है कि यार अब यहाँ पे ना एडवर्टाइजिंग काम आती है. ये दिमाग, मतलब मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, ये दिमाग शायद एक रैपर ना लगाए, ये दिमाग शायद उसको लेबल का एक मार्केटिंग का बंदा बोले कि ऐसा कोई टाइटल कल पर मेरे को, बिकॉज मैंने एडवर्टाइजिंग सीखी है, मुझे मतलब बहुत सारे टूल्स एंड ट्रिक्स पता है जो मैं अपने म्यूजिक में बहुत लगाता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा लगाता हूँ. तो मतलब वो जैसे फोमो, लाइक तू मेरे देखेगा तो दिस ऑलवेज अ स्ट्रेटजी. लाइक फोमो में फियर ऑफ मिसिंग आउट की जगह आई गिव फोमो टाइटल लाइक fear of not making it out there. So could you repeat that? FOMO, sorry. So FOMO means fear of missing out. ठीक है, तो I made it like fear of music not making it out there.
तो FOMO. तो मेरा फोमो का पर्सपेक्टिव क्या है, लाइक उसके जैसे मेरा गाना आया था इस्तीफा, तो मैंने लिटरली इस्तीफा पत्र डाला था एक लिख के. तो जब मैंने लोगों को मैसेज किया तो मेरा व्हाट्सएप का ओपनिंग टेस्ट था, मैंने इस्तीफा दे दिया. एंड व्हाट्सएप पे यू ओनली रीड द फर्स्ट 4 लाइंस देन यू क्लिक ऑन द मैसेज. तो बहुत लोग को लगा कि शायद मैंने नौकरी छोड़ दी, पर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी, मैंने झाटू रैप से इस्तीफा दे दिया था. तो आई ऑलवेज फॉलो माय एडवर्टाइजिंग ब्रेन. वो कितनी बार वर्क करता है नहीं करता है, इस्तीफा को इतने व्यूज आए ना, fuck that, doesn't No, matter. bro. I think you have to go all in with your skills, yeah, when you're sort of So but becoming it an artist. satisfies my creative ego कि dude मेरा गाना जैसा भी हो, मेरी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी कूल है, जो बहुत रैपर्स नहीं करते होंगे. ठीक है, मतलब आई ऑलवेज हैव एन आइडिया टू इट. सो व्हेन क्लासिक देहाती केम आउट, क्लासिक देहाती इट्स एन एडवर्टाइजिंग आइडिया, it's not a hip hop idea. Like Classic Dehati can be so much. Classic Dehati can be a costume. Yeah. Like Classic Dehati, I thought of it. Like I haven't designed it. I have a fucking outfit ready. It's called the Classic Dehati dress. You know, Classic Dehati can be so much. Classic Dehati can be an entire cuisine. You can have pastas with chutney. Classic Dehati, it's not an album, dude. It is so much. It's larger than the EP itself. Like it's a concept. It's a concept. Yeah. Like it can be a fucking club, dude. मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे अच्छे भोजपुरी गाने बज रहे हैं. मतलब आई डोंट नो मैन, इट कैन बी सो मच. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एन आइडिया ना. मतलब तो मेरे लिए हमेशा से क्लासिक देहाती वो था यार, कि मतलब ये कुछ है, कुछ अलग है. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ. करेक्ट. ओके, आई गेट इट. इट्स काइंड ऑफ लुकिंग एट अ कल्चर इन अ डिफरेंट वे. एंड आई थिंक यू हैव डन इट टू सम एक्सटेंट ब्रो, लाइक विद द ईपी. मुझे जेन्युइनली लगता है ब्रो. Because एटलीस्ट मेरे को ये खुशी है कि लखनऊ हिप हॉप सीन के जो बच्चे हैं वो मेरे को अब इज्जत देते हैं कि भाई मतलब ठीक है, क्लासिक देहाती आपने हमें रिप्रेजेंट किया. बिकॉज प्रॉब्लम होती है ना, जब आप अपने शहर से निकलते नहीं हो ना, आप रिप्रेजेंट की बात ही नहीं करते हो. आप भी तब अपनी बात करते हो. लेकिन अगर तू पुणे से बाहर नहीं जाएगा, तो बात करेगा कि आदित्य जहाँ पे भी रहता है वहां की बात बताएगा. पर जब तू पुणे से दिल्ली जाएगा तो तू अपनी बात नहीं करेगा, तो अपने पूरे समूह की बात करेगा, अपने कलेक्टिव की बात करेगा. फिर तू सिर्फ पुणे रिप्रेजेंट, फिर तू सिर्फ आदित्य का घर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तू पुणे रिप्रेजेंट कर रहा है. मे बी अपना टाइम तू महाराष्ट्र रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइक डिवाइन आज बॉम्बे रिप्रेजेंट नहीं करता है. वो जब न्यूयॉर्क नास्कर्स गया था, वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था. एक्चुअली देखा जाए तो वो साउथ एशिया रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ रहा है. तो वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्लासिक देहाती बहुत लोग की कहानी है यार. तो मेरी स्टोरीज उसमें है, बट उसमें मतलब मैंने उसमें इतना स्टोरी लाइन काइंड ऑफ फॉलो नहीं करा है. मतलब लाइक कुछ बातें मेरी हैं, कुछ मेरी ऑब्जर्व चीजें हैं, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा राइटिंग है, तो वी सॉर्ट ऑफ आई गेट इट. करेक्ट. तो बस ये है कि जैसे हमरा रेज में मैंने बहुत अपनी बात करी है, बट प्रॉब्लम इसकी, मेरे को बहुत दोस्तों ने बोला कि हमरा रेज हमारा भी रेज है. लाइक यू एक्सपेक्ट मेन टू ड्राइव अ कार. उसमें लाइन है कि चलानी आती गाड़ी नहीं, कटानी दाढ़ी नहीं, करने डोले भारी नहीं. बिकॉज एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम बॉयज इन यूपी कि भैया गाड़ी चला लेते होंगे, क्लीन शेव रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे. क्यों रहे भाई, हम क्यों रहे भाई, तुम कौन होते हो. हमारा क्लासिक देहाती है, हम ऐसे पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम क्लासिक देहाती है. मतलब तो देयर वाज अ लॉट ऑफ, because I was at home, lockdown में था, तो kind of observe things for 8-9 months. I wrote it in Lucknow. तो वो एक kind of एक निकल गया. मतलब you are like also in the right space, I'm assuming. करेक्ट. मैं बॉम्बे में बैठ के नहीं बना पाता कभी क्लासिक देहाती. I am blessed कि कोविड आया और I could make क्लासिक देहाती. So it's basically taking the stereotype, reinventing it, and breaking the stereotype. Correct. So like this word tafri, what does it mean? So तफरी बेसिकली इज लखनऊ's way of partying. मतलब लाइक तफरी कर रहे हैं, मतलब जैसे बॉम्बे बोलते हैं ना मचा रहे हैं. मतलब तो मतलब हर शहर के बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं भाई मौज कट रही है. लखनऊ में तफरी होती है भाई. मतलब हमारा द डेफिनेशन ऑफ फन, लाइक that is something that I'm trying to build a Lucknowi dictionary. Like Aithan is our way of attitude. Right. Like Amrik Queen में this is what called Motarma. So Motarma is how we connote women. तो मोहतरमा is like regularly used, like slang है. मतलब बहुत बोला जाता है, अरे आइए मोहतरमा आइए. मतलब काइंड ऑफ जैसे बॉम्बे के बहुत वर्ड्स आए ना हिप हॉप सीन में, कि ये मचाना है, ये वो, मतलब जो भी वहाँ के, वो तो वैसे ही बहुत हार्ड, मतलब जो बॉम्बे के फ्रेजेस है. तो आई रियली लाइक, आई एम नॉट ट्राइंग टू फोर्स इट, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं जितना हमारी डिक्शनरी और हमारी डायलेक्ट को तफरी, लाइक हम तफरी वाज ओरिजिनली टाइटल्ड हमरा ट्रिप. उसमें लाइन भी है, उसमें हमरा ट्रिप है, say in the song also, but I thought कि no, let's call it tafri, because that's how it make it more Lucknow. जो गाने में लाइन, that is something we used to say in school, चलो यार तफरी करते हैं. Right. So and in the song I'm talking to, if you see the music video,
इन तफरी की म्यूजिक वीडियो में वी आर ट्राइंग टू से कि कैसे जो लोग हैं जो इस शहर की इस गंदी उसमें फंस गए हैं, वही सैड सी जॉब, मतलब बैंक एंड ऑल, वही दौड़ रहे हैं। लाइक तो वीडियो देखेगा तो वो जो उसमें बंदा है वो हर्ष है, तो मैंने बताया ना जो ईडीएम बनाता था, तो हर्ष एक शर्ट पहन के हजरतगंज में दौड़ रहा है, जो एक्चुअली यहाँ करते हैं लोग, वही गंदी जिंदगी में फंसे। छोड़ो यार, तफरी करते हैं, जो मन में है वो करो। तो काइंड ऑफ इट वाज लाइक लाइक वो था। तो तब तो दैट्स व्हेन इफ यू सी इन द म्यूजिक वीडियो देयर इज अ फ्लो जिसमें वो सब करते करते इवेंचुअली मेरे पास पहुंचता है, एंड देयर इज अ शॉट वेयर ही इज हैप्पी एंड आई एम हैप्पी एंड वी आर चिलिंग टुगेदर इन द वीडियो। तो वो यही उसका स्टोरी लाइन ये था कि लाइक हो गया यार, तुमने सबको खुश कर दिया, घर में जिम्मेदारी पूरी कर दी, पैसा बचा दिया, शादी कर ली, बट फक दैट, आओ तफरी करते हैं। तो इट काइंड ऑफ आई टच्ड अ लॉट ऑफ स्मॉल टॉपिक्स हियर एंड देयर थ्रूआउट द No, and like lingo को लेके भी I think you're doing a good job there as well, because I asked you about tafri, right? तो मुझे भी समझ में आ रहा है तुम्हारा lingo. So etan, tafri, like even I'm sort of getting educated with what is and I have a spoken fucking Lucknow. book. I have a book. Bro, हम तो तैयार है bro. So imagine like me being a Maharashtrian, it's very fascinating for me to sort of look at Lucknow from this space, this point of view. So it's very interesting. Somebody told me this also. A marketing guy told me once ki don't perform in Lucknow, perform in other cities, you will sell more. He's like, don't perform there. मतलब ना, he was a good guy, मतलब वो बहुत बड़ा बंदा है, like he does supersonic and all. तो मतलब he said कि तुझे बिकना है ना, तू दिल्ली जा। like कितने पंजाबी कितना बिकता है दूसरे शहरों में, करेक्ट? पंजाब में तो बिकता ही होगा, बट मोर कमर्शियल पंजाबी साउथ में भी बचता है, साउथ एशियन पंजाबी इज लाइक, एंड तुझे यूपी वाले हर जगह मिलेंगे, वो वर्ल्ड में हर जगह है, एंड उनको लेके स्टीरियोटाइप्स हर जगह है। तो तू कहीं और भी जाके अगर बजाता है तो यू कैन एक्चुअली मतलब सेल मोर। लाइक मैं तो ये लॉकडाउन आता तो हम तो क्लासेस जाते, टूर वूर भी प्लान कर रहे थे, बट नहीं हुआ, मतलब सेकंड वेव आ गई, वरना अभी मैं होता कहीं बजा रहा होता, मतलब जयपुर है कहीं तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड लाइक डेफिनेटली कम टू पुणे आल्सो। वो सिटी तो अरे डूड, मेरे को बहुत मन है यार पुणे आने का, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मन है। पुणे तो लेजेंड जगह है डूड। आई परफॉर्म्ड इन पुणे वंस। कहाँ पे? So I performed at a party in Baner. There's a private party in Baner. I think Baner में काफी rich अमीर लोग रहते हैं, I don't know. Yeah, so I we mean, did a sort of. Yeah. kind of banderish kind of, मेरे को कुछ लोग मिले थे. There was a huge party on the terrace or something, and we didn't have money. So it was New Year's. So me and my friend, he's a DJ. If you see, there's a song called Chal Bana Hai Mahal in my discography. Yeah. तो उसमें जो बनता है TBG, he's in Australia right now. तो वो मतलब उसके साथ मी वेंट देयर, तो मैंने थोड़ा आई रैप्ड एंड ही डीजेड, सो वी काइंड ऑफ हैड अ like we had formed a duo kind of thing, and we performed in some venues in Bombay also. तो वो हमारा भी एक सीन था साथ में. He was also from the same college these other guys were. So I came to Pune to perform that. मतलब that's perform there. Nice. Bro, also I missed out this point. You have a video with B-Unique. तो मतलब I was like, अरे भाई ये तो मतलब कहाँ से आ गया? Like this like I wasn't expecting that. तो उसका क्या सीन है? I don't think so. Nobody, मतलब whereas I really sometimes मुझे ना कभी ऐसी ग्रीड आती है कि क्या मैं मतलब ऐसा ओपनली बेचूं क्या ये बात, रोज पोस्ट करूं क्या इस बारे में? बिकॉज मतलब तू इमेजिन करना यार, बीइंग इंडियन चैनल हम बचपन से देख रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से देख रहे हैं, एंड बीइंग अ वीडियो फॉर देम, ऐसा भी नहीं कि आई वाज समवेयर बिहाइंड, आई वाज एज मच एज निक इन द वीडियो. It was, I don't know man, it was kind of achievement यार, मतलब I don't know किसी ने उस POV से उसको देखा कि नहीं, पर मुझे तो लगा डूड कुछ तो करा है यार, मतलब अब तो इज्जत दे दो. पर फिर भी बॉम्बे सीट में भाई कोई रिकग्निशन नहीं, लखनऊ वालों को याद नहीं, बिकॉज आजकल इंटरनेट की दुनिया इतनी तेज है, आई डोंट नो, बट डूड या इट हैपेंड यार, मतलब करा हमने वो गाना, हुआ था. सही है ब्रो, बट आई थिंक यार लाइक you are representing Lucknow UP like from a very different point of view, and I know कभी like, तो कोई सुन ही लेगा. कभी तो आएगा. Yeah. No, I'm just wondering like a Maharashtrian dude like me sitting here listening to someone from Lucknow and digging that, तो मेरे जैसे और कितने लोग रहेंगे यार, and that's sort of, I hope हो यार, मतलब yeah, नहीं I'm sure bro, like ये थोड़ा
I don't know, ये लॉकडाउन वगैरह टूर एक बार चालू हो गया तो I think it'll be fun I more for know, you. I'll try, but I'm sure by that time my album will be out, and भाई सब कर लो an भाई, album. दोनों टूर्स कर लो यार. An album कोई is सीन नहीं. something else, matlab, is हम्म. something else, and it's not just an album, matlab, there are songs to promote the album. So there is an entire kind of EP to promote the album, and then there's an EP to follow up the album. So Wow. matlab, So one tribe के साथ ही है अभी पूरा. सब one track के साथ है, सब one But yeah, track के this साथ is है. like a great. I think तो मेरा और एक point of view है कि like a rapper should find a producer जो लॉक हो जाए उसके साथ. Yeah, yeah. अगर Like लॉक Says नहीं and हो Prab, रहा, no? yeah, but I don't know, उनका एक अलग सीन है. But yeah, they did what they did and it was crazy. Yeah, they did what they did. Yeah, they did Yeah. what they did. Yeah. Crazy था वो. So that way कि even if you have the best producer and rapper भी अच्छा है, but दोनों का जम रहा नहीं है, तो it doesn't make sense. Which happens in Bollywood songs, no? Like वो लोग best और best को collab करने के लिए साथ ले आते हैं. वो But तो अलग पता ही नहीं सीन है bro. Bollywood अलग दुनिया गाने. है. Bollywood is a different पर world. वही मैं कह रहा हूँ कि they get the best of producers with the best of Yeah. rappers, and वो songs नहीं करते यार इतना great. मतलब they record in the best of studios. They मतलब सब करते हैं. यशराज स्टूडियो जाते हैं, सब करते हैं. But चलते हैं वो एक हफ्ता चलते हैं, but life नहीं होती. True, Because I true. think the producer should not just understand your voice. He should also learn to say no. Because when you have a producer on board with you ना, तो क्या होता है कि फिर जब भी किसी रैपर को एटलीस्ट रैप में जिंदगी की कुछ भी ख्याल आता है ना, तो ब्रो वर्स ब्रो कोरस, then but then he has, because he's like ड्रेक का जो प्रोड्यूसर है 40, ड्रेक का जो प्रोड्यूसर है, ड्रेक आज कुछ नहीं होता अगर 40 नहीं होता. एंड ड्रेक जैसी राइटिंग लिखता है, अगर ड्रेक के आज 1000 गाने बाहर है, इसका मतलब ड्रेक ने 30,000 गाने बनाए, पता है? Because Drake is what? Drake is like he sitting on my mic, I got the hype, got a phone from a girl and she's not my type. मतलब Drake can make a song every second, but it is 40 who chooses कि ये अच्छा है ये नहीं है. So when you have a producer kind of on board with you, you happen to feel कि चलो कोई तो है, तो let me just keep on thinking. तो I might call one tribe and tell कि bro there's a verse, bro there's this, I'm planning a EP, this, but because he somewhere has to design your sound, he should know to say no. Like I worked with producers जो कहते हैं अच्छा लग रहा है तेरा आवाज, उनका ब्रो पर इनपुट दे, कहता है मस्त है, तेरे को जो सही लग रहा है ठीक है, मतलब तो don't give a fuck. No, but then there's a वही तो difference है ना between beat makers and producers. Yeah, correct. So he actually, like, because since he's trying to like क्लासी देहाती का sound उसने create किया है, तो वैसे it's very good कि मतलब वो ये समझे कि इस वक्त मेरे मूड में क्या चल रहा हो, कि मैंने ये भड़ास में लिख दिया, बट क्या ये मेरे एटमॉस्फेयर से जाता है, क्या ये स्कंद के persona से जाता है, समझ रहा है? क्लासिक दादी could have been 10 songs, but it is not 10 songs. तो ये एक होता है कि वो समझ जाता है तुम्हें, मतलब कि उन्हें एक शादी हो जाती है कि समझ जाता है कि ये अभी ये भड़ास निकालने की कल रात में कुछ तो है हुआ है, या तो इसने कुछ तो बैठ के कल ना बहुत हिप हॉप सुन लिया, बहुत दिल्ली हिप हॉप सुन लिया, तो ये ना सुबह उठ के एकदम पागल हो रहा है, मतलब he's trying to make a banger, but we don't expect Skun to make a banger, we want him to make something else. वो एक बहुत जरूरी है, the confidence to say no to a rapper is very necessary. क्लासी देहाती में वो दिख क्या आता है when I talk about a producer and a rapper and they lock and like create something. So I think क्लासी देहाती, I'm really excited for the future collaborations you and One Tribe have. मतलब I'm looking forward to like what kind of a sound like क्लासी देहाती से कैसे evolve होते हो तुम. So I think that. तो मैं तुझे बताता हूँ, I think क्लासी देहाती is me evolved, पता है? अब मैं वापस जा रहा हूँ. Because क्लासी देहाती is something I made now. And the rest of the other stuff that I have planned, I have been making for the past 4 years. So Classy Dehati was me experimenting. By these new songs that are gonna come out, I'm going back to the Skand I wanted to be since 2014. Yeah, but उसका भी कैसा सीन है कि you'll be that Skand with that much experience. Correct, but an involved sound. Yeah, exactly. So which One Tribe got. Correct. That's like, my point. So correct. Yeah, that I agree to it. Like मतलब वैसे जब वो गाने, जैसे उन गानों की old versions भी मेरे पास पड़े हैं, like जैसे जो कहाना तूने सुना रोज की कहानी, and that performance, अभी that song is there, but it's not like how it was. Yeah.
Now it is a completely new song. The lyrics might be somewhat close, but it has a One Tribe touch to it. Now it has a Skun into One Tribe thing to it. And like It's my personal favorite in Classy Theati would be Hamra Resh from a production point of view as well. Dude, बहुत कम लोगों को हमारा रेस पसंद आता है, but वो गाना अलग है, मतलब it is Bro, something different. मतलब production wise also, bro, it's crazy. Like मुझे बहुत पसंद आया, bro. And like even the whole, like I can't stop complimenting you, bro, on the EP. मुझे I'm telling you, bro, it's insane. It is crazy. मतलब यार वही है कि ऐसे ज्यादा प्लेलिस्टिंग नहीं मिली क्लासिक देहाती को, आर्टिकल्स नहीं आए, मतलब रोलिंग स्टोन पे एक फीचर आया था, थैंक्स टू देम, बट वो भी बिकॉज उस तब वैलेंटाइन का उसको कुछ चल रहा था, तो हमरी क्वीन गॉट अ फीचर, पर लाइक मैंने सबको भेजा, लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द बॉम्बे पॉप सीन, लाइक आई नो एवरीबॉडी यार, ऑल ऑफ दीस गाइस, सबको भेजा, ठीक है, नोबडी शेयर्ड, तो मतलब नोबडी गिव अ फक, तो शायद 2 साल पहले मुझे इस बात से बहुत बुरा लगता, ठीक है, बट राइट नाउ आई नो कि वो अच्छा है प्रोडक्ट एंड मेरे शहर के लोग इज्जत दे रहे, तो आई वाज काइंड ऑफ ठीक है यार, मतलब 1000 स्ट्रीम्स भी विक्ट्री है ना, बिकॉज 0 के बाद अगर तुम्हें 3 भी मिलता है, तो वो जैसे तेरे पहले पॉडकास्ट पे अगर 50 व्यू आए तो इट इज बेटर देन 0, मतलब 50 इज ग्रेटर देन 0, 1000 स्ट्रीम्स इज गुड, मतलब 1000 स्ट्रीम्स इज नेचुरल, मतलब कि कोई 1000 बार अगर मेरा गाना सुन रहे हो, आई थिंक अभी शायद इट्स क्रॉस 2000 कुछ, तो अच्छी बात है, मतलब तो काइंड ऑफ crazy, insane. So like we are sort of coming towards the end of the conversation, and like I genuinely had a blast, bro, talking to you. मुझे बहुत कुछ पता चला है, and I'm glad like I could like talk to you about your story, and the fact that like I'm just guessing I'm probably the first one to talk to you about your story and Lucknow hip hop in general. Of course. It's a pleasure, bro. And what? Bro, thanks, यार, bro. मतलब if कोई 1 घंटा बैठ के मेरी बकचोदी सुन रहा है, मतलब और क्या चाहिए, bro? मतलब. But what do you have in store? आगे अभी क्या है? So like I said, can we expect? Though the album is in the making, but I don't know, man. It has been in the making since 4 years, so. Bro, time, it should come this year, but even if it doesn't, I am totally okay. But yeah, I have another song coming by the end of this month, and it is I don't know when this comes out, but it has a very interesting title to it. It's called Hip Hop Ka Pandit, and this is again me, because it's not with One Tribe, it's with another guy, it's with another producer. His name is Prayosh. मतलब तुझे पता होगा ना कि यूपी और हिंदुइज्म का एक अच्छा खासा मेल है, मतलब there are a lot of famous Hindu figures or religious figures from UP. Some for bad reasons, but a lot of them for good reasons also. You know, somewhere मतलब culturally एक है, and I being like I'm a Brahmin, मतलब I am a Pandit by वो, so I really thought कि there should be a different, I should also like UP से पंडित इतनी famous है, पंडित गिरी, तो उसका एक हिप हॉप वर्जन भी होना चाहिए, एंड सिंस आई एम ऑलरेडी अ क्लासिक देहाती, आई हैव ऑल द राइट्स टू बिकम हिप हॉप का पंडित, तो इस काइंड ऑफ क्लासिक देहाती ने एक दिन के लिए हिप हॉप का पंडित बनने जा रहा है, तो मतलब दैट ट्रैक इज कॉल्ड हिप हॉप का पंडित. I don't know, man, it's a really intriguing title for me, like hip hop का पंडित. अब से इसमें भी सीन है कि it might sound a little trying to get you on the song, you know, like people release songs like hip hop ka Don, hip hop ka OG, people do that shit. Hip hop का पंडित, dude, but when you listen to the track, I don't know, मतलब जो टाइटल पढ़ के जो मन में आएगा वो, हाँ, when it comes out, will definitely. So that's coming out soon. That's coming out legit this month only. Hip hop का पंडित is coming out. Then it will be followed, I think, couple of more singles, kind of setting up the sound for the album, and then inshallah the album will come. Yeah. Wonderful. पर उसके अलावा I'm like I've got into this, I've really like making songs like Humri Queen, मतलब like you have, like when it comes to making raps on women or love, there's obviously a very big stereotype about a certain kind of songs that are made, but agar Humri Queen aap sunoge, to it is not that. And not just Humri Queen, there are a lot of such tracks in the hip hop scene that are about women, but they're really good songs. like एक सौंदर्य और ऑनकोर का भी गाना है, मतलब है काफी गाने हैं, मतलब जो हैं they're on women, but they're like Raga has a track called Kendi Si, beautiful writing, मतलब अच्छा गाना है, तो ऐसे हैं गाने. I really feel कि
अगर आप मैच्योरली लिखोगे तो आप बिना cheap sound करे भी you can make Yeah. good romantic songs. So I've been writing a lot of those, and वो भी बहुत सारे आने वाले हैं with different producers, some with one tribe. तो वो एक पूरा zone है जो मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ. So yeah, that is all in store. For अभी के लिए जो मेरे को पता है मैं निकाल सकता हूँ. In store तो बहुत है पर ठीक है. This is what I can actually kind of commit कि भैया इतना is going to come. Inshallah कब आएगा पता नहीं, how this lockdown takes life ahead, but yeah, this will come, dude. The album will come, and all this will come. Crazy. That's it. Crazy. Yeah. Bro, thanks a lot for taking the time out to talk to dude me. Dude, somebody's questioning my story. It's very overwhelming, dude. Matlab, I feel very privileged right now ki somebody gives a fuck about, like, nobody asked me, man. नहीं, कोई सीन नहीं, bro. We'll do this again when the album comes out, bro. I really want to talk. Like, अरे dude, मैं देखो exclusive भी तेरे को पहले भेजेगा, मतलब release के. Nice. I'm curating a list of people. I'll send it to, and I'll surely send it to you, bro. Matlab, and you're going to love it. Matlab, sorted. I mean, I don't know, man. I'll come to Pune, man, to perform it. Chalega, bro. Like, definitely come to Pune. And you guys are also planning some live show kind of thing. Yeah, like, bro. आगे जाके. Hey, plans. That's in the तब box. तक आ जाएगा album. So bro, let's see, man, if we can yeah. do something, है ना? For sure, man. And for people listening to this episode, check out Skun's music. I mean, I've like इसमें और आधा घंटा चला जाएगा as to like, how much I've really liked Classy Dehati. But like, check out his music, check out One Tribe. Follow both of them, and like they have a lot of projects coming in, as Skun said. And follow us on Instagram. Do follow for the Spotify, record, यार. yes. Guys, मेरे गिने चुने followers की for the record को भी follow कर देना. Yeah, so this episode. But dude, yeah, is legit. Yeah, very good. Yeah, I'm really happy that you're trying to do this, and I would love to refer you some other artists too that are from smaller towns and doing some legit stuff. For sure, bro. And I'll surely tell you. Chalega. All right, guys. Thanks a lot, Skund. Thanks a lot, man. Like, thanks a lot.